Good evening, everybody. Namaskar, quadrillion, quadrillion. Good evening, everyone. This is 6th January 2024. आज 6 जनवरी 2024 और मैं आपसे चुनाव के संबंधी ईवीएम्स का अब्यूज़ को शेयर करना चाहता हूँ अपनी अपनी जितनी नॉलेज है के हिसाब से. आई एम जस्ट इंटरेस्टेड टू टॉक अबाउट कैन ईवीएम बी अब्यूज्ड और डाटा बी अब्यूज्ड. क्या ईवीएम को अब्यूज़ किया जाता है वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन डाटा को तो अब्यूज़ किया जा सकता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड. डाटा कौन सा डाटा? मशीनों के डाटा नहीं, वोट के डाटा आई एम टॉकिंग ऑफ. डाटा ऑफ वोट्स. वोट्स आप डालते हैं, हम भी डालते हैं. एवरीबडी गोज फॉर पोलिंग एंड आई हैव पुट ए फाइल on script.com, excel file. Text, if you see text of this video, you shall find script.com, that file, excel file, very small file. It gives a tabulation on that tabulation form, and range of that tabulation form is about votes, EVM use. EVM can be used only for 1000 votes one time, and 100% means 1000 votes. And I have considered from 50,000 votes to 20 lakhs vote seats. In our country, I'm taking 50,000 minimum and 20 lakhs maximum range of votes that can be polled. 50,000 से 20 लाख तक की रेंज मैंने कंसिडर की. इस टेबल में एक ईवीएम मशीन 1000 वोट ले सकती है, और उसके मैंने 50-50 की फ्रीक्वेंसी दी. 50, 100, 150, इस तरह से 50, 100, 150 एटसेट्रा. दिस मीन्स यू हैव 40 columns for votes. Each machine, that's up to 40 lakhs from 50,000, and division of 50 to 100. You can see that if you download. इसमें एक्चुअली क्या मैंने किया है मैं बताना चाहता हूँ. एक्सेल के थ्रू फार्मूला कंजर्वेशन के थ्रू आई जस्ट ट्राई टू अप्लाई फार्मूला एंड फॉर्मुलाइज दैट. पर्पस क्या है आप ये जानना चाहेंगे. व्हाट इज आफ्टर ऑल पर्पस ऑफ दिस. इसके पर्पस दो हैं. देयर आर टू पर्पसेस फॉर दिस. वन इज how to manipulate votes, or it's they call hacking, I'm calling manipulation. During, suppose somebody impersonates, let us say somebody impersonates and goes for polling, or there is some mix up between agents and presiding officer, or whatever it is. Every possibility is there. Which party is supposed to be supported? How many votes should be there in one EVM? Additional votes or impersonated votes, or by whatever means, or at time of counting what can be done, even if suppose there is no hacking. I am not very experienced about hacking. I do not know about whether or not EVM can be hacked. मैं नहीं जानता EVM हैक हो सकती है नहीं हो सकती. होती तो है, लेकिन मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसलिए मैं उस पर बात नहीं करूँगा. बहुत से लोग हैं बात करने के लिए. सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, बेटर, दे आर एक्सपर्ट्स. They should tell about this. I am not expert of this, but as far as data is concerned, can data can data be counted or included as manipulation during counting of EVM's vote? That is possibility. Nobody can deny that, because there are thousands and thousands of entries to be made during counting process, and that is very important. Purpose of this is to that means it is can be used for both purposes. I'm just trying to say up to 40, up to for 20 lakhs votes we have in the custody. We take let us say 550 Lok Sabha seats, and let us say 100 crore votes, so it comes somewhere 18 point something, 18 lakhs. Let us say round figure 20 lakhs. So I have put everything in that table. That table, I'll read for you what that table is actually, because I also don't remember. I just original work I did today itself, and I just want to share with you people. And it is here, you can say. I'm just removing because I can't read otherwise. This is for election and EVM's manipulation. Data can be used to, you can say, do whatever you want to do. It can be used for that purpose. So that's what I'm trying to say. What can be done? What can be done? EVM vote study it is, and which can be used for this. So it's EVM vote study, and here we can say I have given script.com document 697036007 EVM voters study 6124, which can be used for EVM's manipulation of votes by counting authorities. So this is, you can say,
this is all right. I put that URL of my file that has been uploaded on script.com in text of this here. Teams vote game, I'm calling it, and in one column that is C, I'm giving EVM votes polled, which is 50 to 1000, 50, 100, 150, 200, likewise up to 1000. And then there is column of votes, percentage is coefficient, that is 0.05 to 1, and also votes, how many votes? I multiply that coefficient by 100, and 5 to and 15, like this up to 100. So you can see there are 20 rows used for computations. 20 20 rows को use किया गया, 20 rows और 40 column, 800 details. You can say 20 rows. I'm talking of rows in values. For values I'm not talking columns. 20 rows and 40 columns. So 800 values are there, which can be used for purpose of manipulation of EVMs if required by whosoever. Here I'm citing electorates in lakhs. So up to say I start with 50,000, or you can say zero point 0.5 lakhs, then 1 lakh. Likewise, I add 50,000 and 1.52, 2.53, 3.54 up to 40, up to 20 lakhs. So it is 40 column. अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये this has been calculated by formula, but what is EVM's manipulation game it is, and we can say, so how many votes can be abused in EVM, that's the question, कि कितने वोट का हेरा फेरी हो सकती है. देखिए, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, EVM न्यूज़ है, अगर कितने EVM चाहिए वो भी इसमें लिखा है, कितने EVM होनी चाहिए, it is given there according to requirement. What I'm saying is, let us say, the problem is I can't read no problem. I say that let's say first case, this is 50,000 votes, 50,000 वोट हैं, और एक ईवीएम 1,000 वोट ले सकती है, इससे ज़्यादा नहीं. सो वहाँ पर कितनी ईवीएम आ गई? 50,000, 50 ईवीएम आ गई. अगर 1 लाख है तो 100 ईवीएम आ गई. मीन्स इफ इट इज़ 1 lakh, 100 ईवीएम्स. इफ इट इज़ 1.5 lakhs, 150 ईवीएम्स. लाइकवाइज अगर ये आपका है ये केस 20वां, अगर आप देखें 20th row a column, it is, you can say it is 10 lakhs. In 10 lakhs 1,000 EVMs are there, and like in 20, you can say in 20 lakhs 2,000 EVMs can be used. And I have taken another row, that is vote change and added to change. Now कितना वोट हमें एडजस्ट करना है वो देखना है, क्योंकि हमने एक रो लगाई है इसमें जिसमें येलो हाइलाइटर है. इफ यू सी दिस इज 28 row, 28 row, that is in Excel counting. In this horizontal to ABC, vertical is in 20 row, 28th, I'm sorry, 28th. You shall find 25, 25, 20 written, but it is just trial written. It can be whatever number. For example, if I say in one poll, one booth, there are 1,000 votes. If you try to change 50 votes, 25 votes, अगर उस बूथ में हम 25 वोट चेंज कर सकें किसी भी तरह से, चाहे डालते वक्त या उसको गिनते वक्त, अगर हम डालते वक्त भी चेंज कर सकें 50 वोट्स हर बूथ में, if it's possible to change 50 votes in per booth, in each booth, then 25, let's say 25, then 1250 votes can be changed in, can say, manipulation is right because of 50,000, and so it is 1250 votes can be changed in entire scenario of this 50,000 votes. And if you take is say 1 lakh, and if you change 25 in each EVM, there are 100 EVMs, so 2500 votes can be changed. Same way, if let us say, if we have here, let's go to somewhere else, let's say it is 5 lakhs, 5 lakhs votes. This means they have 500 EVMs, and which is 25 votes in each, either at counting time or at polling time. 12,500 votes का फर्क आता है, 12,500 वोट का फर्क आएगा. और इसी तरह से अगर हम 10 लाख में लें तो 25,000 वोट का फर्क आएगा, और अगर ज़्यादा का लेंगे तो उस हिसाब से चलता जाएगा. ये 25 का हमने चेंज किया, मान लीजिए हम इसको 50 कर दें, किसी भी तरह से
काउंटिंग के टाइम या काउंटिंग में लेना है 50 कर दें तो वो डबल हो जाएगा। गेट माई पॉइंट। अगर हम उसको 50 कर देते हैं, मैं करके दिखाता हूँ, 2500 हो जाएगा 1250 की जगह। ये एक तरीका है कैलकुलेशन करने का। मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैंने किया परफेक्ट है, लेकिन एक सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि आखिर ये हो क्या सकता है, हो क्या नहीं सकता। क्योंकि बहुत 1 महीने से करीब मैं लगा हुआ था इसका ऑडिट करने पे इलेक्शंस का। अब मैंने सोचा एक ऑडिट तो खैर होगा और नहीं होगा, उससे क्या होगा, आई डोंट नो रिजल्ट ऑफ दैट। I have given files to concerned person who is leading this case in Supreme Court of India, Honorable Court. But I don't know what shall happen. I have written to Supreme Court also, Honorable Supreme Court about this. I sent files to Supreme Court as well. These files, 3 files. One is presentation cover, other is file that was obtained or that was copied up from EC website, and I worked on that one. That is leads file. Name of that is seat wise. S is capital and W is capital seat wise, and other one is results in parity. अब मैंने जितना कर सकता था अपनी छोटी सी नॉलेज के बेस पे, एक इंजीनियर होने के नाते कितना सोच सकता था, मैंने सोचा whatever I could think with some experience, by general knowledge, by technical knowledge, by quantification, I did that. मैंने कितनी क्वांटिटी निकाल सकता था निकाली। अब किसको समझ आएगी किसको नहीं आएगी उसका तो मैं आंसर नहीं दे सकता, क्योंकि अरिथमेटिक है, मैथमेटिक्स है, इसमें कोई बहस तो हो नहीं सकती। एक तरीका है सोचने का, किस तरह हम सोचते हैं। छोटे बच्चे जब सवाल करते हैं तो कैसे करते हैं, वो तो खैर हो गया। जो मैंने आपको पहले बताया, इन तीनों पांचों स्टेट्स में उस लीड्स जो इलेक्शन कमीशन ने दी है, उस लीड्स के हिसाब से अगर हम देखें और जो परसेंटेज वोट्स उसने एग्जिबिट किए हैं, डिस्प्ले किए हैं वेबसाइट पे, मैं तो उसी को ऑथेंटिक मानूंगा। बाकी अपने ट्रायल अलग बात है। मेरे हिसाब से जो भी परसेंटेज वोट्स ईच पार्टी को या किसी को दिए हैं, उसने हर पांचों में पेजेस पे ग्राफिक्स में, वो मेरे लिए ऑथेंटिक है इस समय। और जो भी लीड्स उसने दी हैं सीट्स वाइज में, वो भी मेरे लिए ऑथेंटिक है। जहाँ तक मेरी लड़ाई का सवाल है, मैं उसी पे आर्गूमेंट करूँगा, उसी से कैलकुलेशन को मानूंगा। वो सच है गलत है मुझे उससे लेना देना नहीं है। दैट इज ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट बिकॉज इट इज पब्लिश्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ दिस कंट्री। I am not sure about election commission's knowledge. One should be knowledgeable. इलेक्शन कमीशन शुड नॉलेजेबल, उसको पता होना चाहिए क्या करना है। अगर वो मैथमेटिक्स को नहीं समझते हैं या उसके ऑफिसर्स नहीं समझते हैं, तो फिर वो डिजर्व नहीं करते कि इस सीट पे बैठें, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसमें, और उसके बिना काम नहीं चल सकता। और अब वो मैं जहाँ तक समझता हूँ, अगर कैलकुलेशन उन्हें सही आती होती तो जो लीड्स उन्होंने दिखाई हैं वो लीड्स शायद नहीं होती। If election commission or its officers had known about working on mathematics or arithmetic, or they knew how to work out calculations, how to understand percentages, how to make sure that whatever data is being published should be per requirement. Requirement is votes polled is equal to votes counted. That is very simple. कितने वोट डाले गए और कितने वोट गिनती में आए, वो नहीं आ रहा है, किसी भी तरह से नहीं आ रहा है। हमने हर एक्शन करके देख लिया। जो इन्फॉर्मेशन मुझे सीनियर एडवोकेट मिस्टर मिश्रा से मिली, नरेंद्र मिश्रा से, जो इस केस को लीड कर रहे हैं, बल्कि इंचार्ज हैं वो इस केस के, ईवीएम के केस के सुप्रीम कोर्ट में, उनको मैंने डाटा दे दिया है। उनसे कॉन्फ्रेंस भी हुई, डिस्कस भी हुआ, सब कुछ हुआ। अब वो क्या करते हैं वो तो उनको देखना है। मैं तो इतना नहीं आगे बढ़ सकता, ना मेरी इतनी एक्सेस है। वो डाटा भी उन्होंने ला के दिया मुझे, राजस्थान का ला के दिया, छत्तीसगढ़ का ला के दिया, मध्य प्रदेश का ला के दिया, और उससे भी हमने कैलकुलेट करके देखा। कहीं भी किसी भी पॉइंट पे जो डाटा पब्लिश किया गया है इलेक्शन कमीशन का, वो मिलता नहीं है जो होना चाहिए इन लीड्स के हिसाब से, या जो वोट्स पोल किए गए उसके हिसाब से। उन्होंने मुझे वोट्स बताए, बीजेपी के इतने वोट हैं, कांग्रेस के इतने वोट हैं तीनों स्टेट्स में, उससे भी कैलकुलेट करके देखा, लेकिन कहीं कुछ बराबरी हो वोट्स काउंटेड में,
वोट्स पोल पोल के बराबर ऐसा मुझे नहीं मिला। बहुत कैलकुलेशन की, बहुत समय लगाया, लेकिन अभी मेरी जो स्टैंडिंग है वो यही है कि मैं उसी को स्तुत मानूंगा जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे है, और वो उसकी जिम्मेदारी है, हमारी तो नहीं है। उसने ये काम किया है, इंस्टीट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन। अगर वो नहीं कर सकता तो कौन करेगा? प्रश्न तो ये है, मैं उसे गलत क्यों मानूं? और इसलिए मैं स्ट्रेस कर रहा हूँ, एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि ये डाटा जो भी वहाँ है उससे हमने हर तरह से वर्क किया, निकालने की कोशिश की कि अगर ये लीड सही हैं, यदि ये लीड्स जो इलेक्शन कमिश्नर दिखा रहा है, एक एक सीट की लीड उसने दी है 700 600 678 असेंबली सीट्स की लीड उसने दी है। तो मैं गलत क्यों मानूं उसको? मेरे को कोई हक नहीं है गलत मानने का। चैलेंज करना अलग बात है, मैं गलत नहीं कह रहा। ये सबूत तो इलेक्शन कमिश्नर ने देना है कि ये लीड सही है, मैंने नहीं देना, किसी ने नहीं देना। ये उसकी ड्यूटी है कि जो भी सीट उसने दिखाई है इलेक्टेड, कौन कौन जीता उन पर, वो भी उसकी ड्यूटी है बताना कि जस्टिफाइड है। जस्टिफाइड कहीं नहीं हो रहा। मेरी वर्कआउट जो किया, मेरी जो कैलकुलेशन बता रही है, परसेंटेज ऑफ वोट्स जो मिले जिस पार्टी को, उसके हिसाब से, क्योंकि मैंने दो पार्ट्स में ये काम किया। एक पार्ट में तो सीट्स की स्क्रूटिनी की, कितनी सीट किसको जानी चाहिए थी, और दूसरे पार्ट में ये जो लीड्स दिखाई हैं इससे कितने वोट पोल होने चाहिए थे। मैं जब रिफ्रेश कर रहा हूँ आपको बता के, क्योंकि मैं बात ईवीएम के अब्यूज़ की आज करना चाहता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जहाँ तक आईएनसी का सवाल है, इन पांचों 4 स्टेट्स में तेलंगाना को मिला के उनको 160 सीट्स का लॉस हुआ है। परसेंटेज ऑफ वोट्स के हिसाब से आईएनसी को जो एक डिज़ाइन रिजल्ट देने के हिसाब से 160 सीट्स, 160 सीट का लॉस हुआ है। इसमें 135 सीट्स तो 3 असेंबलीज की हैं, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, और 25 सीट्स तेलंगाना की हैं जो वहां से उड़ा दी गई। तेलंगाना में इतनी पोलिंग हुई है कांग्रेस की, 86.6% वोट मिले हैं। इमेजिन करेंगे आप, 86.6% वोट्स कांग्रेस को मिले हैं, और 79% वोट उधर आपका मिजोरम में वो नई जो पार्टी बनी है जेडपीएम, उसको मिले हैं। और कहीं तीनों स्टेट्स में इतने वोट किसी को नहीं मिले। ये एक अपने आप में अमेजिंग और सरप्राइजिंग चीज है। यहाँ वो गफलत नहीं कर सका ज्यादा, सिर्फ सीट के साथ खेल गया उसने। इन दो स्टेट्स में कांग्रेस की सीट छीन के उस पार्टी को दे दी, और वहाँ ज़्यादा नहीं किया क्योंकि वहाँ कम सीटें हैं। मिजोरम में 40 सीटें हैं तो 5 पे गेम खेला, लेकिन 135 सीटों का गेम उसने परसेंटेज ऑफ वोट के हिसाब से चला तीनों स्टेट्स में। ये मेरा कहने का मतलब है। अब मैं इस बात पे नहीं दोबारा जाऊंगा, आपको ब्रीफ मैंने बता दिया। अब मैं बताना चाहता हूँ ईवीएम की जो मैंने फाइल आज आपको दी, ये आज ही मैंने सोचा और आज ही बनाया, क्योंकि एक बार जो मैं सोच लेता हूँ, जब तक मैं इसको वर्कआउट नहीं करता तो मैं बेचैन हो जाता हूँ, क्योंकि माइंड भूल जाएगा। मेरे साथ ऐसा होता है, माइंड इतना स्ट्रांग नहीं है मेरा, मैं बहुत इंटेलिजेंट नहीं हूँ, लेकिन जो भी मेरे को याद रहता है मैं आगे उसको याद नहीं रखना चाहता, क्योंकि वो स्लिप हो जाता है माइंड से। यहाँ तक कि मेरी मेमोरी की जो स्ट्रेंथ है, जो मेमोरी की ड्यूरेशन है, आप कह सकते हैं 1 मिनट की ही है। आप यकीन नहीं मानेंगे लेकिन सच्चाई है। 1 मिनट पहले मैंने क्या सोचा था, अगर उस दिन मैं उसको इमीडिएटली काम नहीं किया तो शायद मैं ढूंढता रहूंगा कि मैंने क्या सोचा था। आप कह सकते हैं वीक आदमी हूँ मेंटली, कोई बात नहीं है। जिंदगी में कैलकुलेशन बहुत की है, और जब ज़्यादा माइंड चलता है तो माइंड इतना फास्ट हो जाता है कि आपने क्या सोचा था 1 मिनट के पहले, वो पिकअप करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन आ जाता है बाद में यार। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो मैंने फाइल तैयार की है ये सभी के लिए है, ये खाली इन असेंबलीज के लिए नहीं है, ये देश के पूरे चुनावों के लिए है, जिसमें विधानसभा के भी चुनाव होंगे, लोकसभा के भी चुनाव होंगे। और मैंने इसको लोकसभा के एंगल से काउंट करके उसको अपने माइंड में रख के तैयार किया, जैसे कि 50,000 सीट से लेके 20 लाख तक के वोट हों। 50,000 वोट से लेके 20 लाख तक के, वो इससे ज़्यादा वोट मैं नहीं समझता कि होंगे। अगर होंगे तो कोई बात नहीं, और 2-3 उसमें कॉलम ऐड करते जाएंगे, उतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये ओरिजिनल वर्क है,
जो मैंने अपने कॉन्सेप्ट से तैयार किया है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही मेन चीज़ होती है कि क्या हो सकता है हेरा फेरी करने के लिए, और ये वेरिफिकेशन के लिए भी है। हेरा फेरी करना होगा काउंटिंग के टाइम, या हेरी फेरी करनी हो जब हम, जिसे लोग हैकिंग कहते हैं, उसके लिए ज़्यादा कि मैं हैकिंग का नहीं मास्टर ना, मैं जानता हूँ, लेकिन डाटा को एडजस्ट करना तो कोई भी जो जो थोड़ी बहुत नॉलेज रखता है कैलकुलेशन की या मैथ्स की, कर ही सकता है। जो थोड़ी जानता है परसेंटेज क्या होती है, सम क्या होता है, एटसेट्रा, वो जान सकता है। उसमें इतना बड़ा विज्ञान नहीं है, कॉमन सेंस की बात है। अगर आपकी कॉमन सेंस है, और कॉमन सेंस इंजीनियरिंग में बहुत वैल्यू रखती है, पर्टिकुलरली सिविल इंजीनियरिंग में, और मैं क्वालिफाइड सिविल इंजीनियर हूँ, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। आई एम ए प्रोफेशनल इंजीनियर, आई एम ए चार्टर्ड इंजीनियर, आई एम सिविल इंजीनियर, एंड आई एम इंटरनेशनल प्रोफेशनल इंजीनियर। ये सारे मेरे, एंड ऑन लिस्ट आर्बिट्रेटर इस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया। और वो कितना है कितना, आई एम आर्बिट्रेशन कंसल्टेंट, आई एम इंजीनियरिंग कंसल्टेंट, आई एम डिजाइन, आई एम कंस्ट्रक्शन, आई एम क्वालिटी, वट एवर यू कैन से, बेस्ड ऑन कंप्लीट एक्सपीरियंस। आई एम जस्ट सबमिटिंग टू यू दैट दिस माइट हैव हैपेंड, ऐसा हुआ होगा। जहाँ तक मेरा स्ट्रेस है डाटा को लेके, जो भी ईवीएम का है, उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे 1000 वोट हैं, उसमें आप 500 गुना का चेंज नहीं कर सकते। अगर मान लो 5 गुना का, सॉरी, चेंज नहीं कर सकते। जैसे अभी आप कहेंगे इसका तो आया रिजल्ट 86% है, वो ठीक है, वो फैक्ट्स है, वो एडजस्टमेंट नहीं है। जो तेलंगाना का है वो फैक्ट्स है, लेकिन सीट पे उसमें खेल किया गया है। और वो जो फैक्ट है उसका, मिजोरम का वही फैक्ट है, वहाँ भी काफ़ी मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 86 और 14 आप खुद देख लीजिए, 86 और 14 है, तो कितना गुना हो गया, इट्स मोर देन 4, 6, आई एम सॉरी, मोर देन 6। और वहाँ है 70 समथिंग एंड 20 समथिंग, सो दैट्स ऑल्सो 7 टाइम्स, 6 or 5 times. So what I'm saying is, it is, लीड इज क्वाइट डिफरेंट। इफ यू लीड देंगे तो और भी ज़्यादा आएगी। तो यही बात मैं कह रहा हूँ, जो लीड दिखाई गई है चुनाव आयोग द्वारा, बीजेपी और कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूँ, 3 स्टेट्स में, मैं 2 स्टेट को अलग रखा, 3 स्टेट को अलग रखा, वो लीड कन्विंसिंग नहीं है, बिकमिंग नहीं है, अनबिकमिंग है, कंप्लीटली अनबिकमिंग है। कोई भी आदमी थोड़ा सा कॉमन सेंस रखने वाला, थोड़ा सा समझने वाला डाटा को कह सकता है। मैं तो सच बता रहा हूँ आपको, जब मैंने लीड्स को देखा, मेरे को समझ नहीं आया कि मैं क्या देख रहा हूँ पहली बार। मैं तो ऐसे खेल खेल में देख रहा था, मुझे कोई, मैं कोई इन्वेस्टिगेटर तो हूँ नहीं, ना मैं डाटा साइंटिस्ट हूँ। मैं तो ऐसे ही, मुझे कन्विंस नहीं हो रहे थे रिजल्ट्स, बिल्कुल कन्विंस नहीं हो रहे थे, जो परसेंटेज ऑफ वोट दिखा रहे थे उसके हिसाब से। जो ग्राफिक्स मैंने देखा उनका, राजस्थान के 2.16 का डिफरेंस बीजेपी और कांग्रेस का, सिर्फ 2.16% का डिफरेंस, मैं इसी को ऑथेंटिक मानूंगा। उसमें दिखाया मध्य प्रदेश का 8.15% डिफरेंस बीजेपी और आईएनसी का, मैं उसको ही ऑथेंटिक मानूंगा। और छत्तीसगढ़ का जो दिखाया 4.04% बीजेपी का और कांग्रेस का, मैं उसको ही ऑथेंटिक मानूंगा। बाकी कैलकुलेशन से सिर्फ अपने ट्रायल के लिए हैं, मुझे वो ऑथेंटिक नहीं माननी, चाहे वो डाटा कहीं से आया हो, क्योंकि अब क्वेश्चन है ऑथेंटिसिटी का। गैजेट में उसने दिया है, अपनी वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन पब्लिश की है, एंड दैट इज मच मोर सिग्निफिकेंट देन वट एवर डाटा आई कलेक्ट फ्रॉम वट एवर एल्स सोर्स। आई, दैट इज ओनली फॉर सपोर्टिंग कैलकुलेशन, नॉट फॉर ऑथेंटिक जेन्युइन कैलकुलेशन। नाउ इट इज ड्यूटी, ये अपनी उसकी ड्यूटी है इलेक्शन का। मैं कभी हिंदी में बोलता हूँ, माफ करना, इंग्लिश में तो थोड़ी देर में 5 मिनट बोलता हूँ। ये ड्यूटी उसकी है, प्रूव करे कि सही क्या है गलत क्या है, अपनी लीड्स जो उसने दी है प्रूव करे। ये नहीं कह सकता ये प्रोविजनल है या ये परमानेंट नहीं, नहीं, ये कोई प्रोविजनल नहीं है। प्रोविजनल का मतलब 1-8% का फर्क हो सकता है, 5% का फर्क हो सकता है, दैट इज प्रोविजनल। आप ये नहीं कह सकते कल को मैं 1/10 कर दूंगा इसको या 1/3 कर दूंगा इसको, नहीं, दैट इज नॉट प्रोविजनल, दैट इज डिसीविंग पीपल ऑफ दिस कंट्री। इस देश के साथ धोखेबाजी हो रही है, हम वोटर्स के साथ धोखेबाजी हो रही है, क्योंकि वोटर्स को तो पता ही नहीं हो क्या रहा है। हर वोटर तो डाटा नहीं देखता, वो तो यही देखेगा कौन जीता और कौन हारा। और कहते हैं ना टेलीविजन वाले, जो जीता वही सिकंदर। यहाँ सिकंदर जरूर है, लेकिन वो सिकंदर वो वाले सिकंदर नहीं है, वो मेंटली सिक अंदर है, सिक, बीमार जिसे कहते हैं। इलेक्शन कमिश्नर बीमार हो चुका है दिमाग से,
बीजेपी वाले बीमार हो चुके हैं दिमाग से, और वोटर भी दिमाग से बीमार हो चुका है, क्योंकि वोटर सोच नहीं रहा कि हो क्या रहा है। बड़े बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट के आंदोलन कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एनालिसिस कोई नहीं कर रहा। खाली वकील नहीं, बड़े बड़े लोग, टीवी वाले या नॉन टीवी वाले, यूट्यूब वाले, सब बस शोर मच रहा है बहुत बड़ा ईवीएम का, लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा। जैसे मैं पहले भी कहा, ईवीएम मेरे हिसाब से एक सुरक्षा कवच है इलेक्शन कमीशन का। उसने बना लिया है इसको, और उसके पीछे वो जो स्टेजिंग कर रहा है, जो ड्रामा कर रहा है, वो हमारे देश के लोगों को समझ ही नहीं आ रहा। और मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जितनी मैंने पोस्टिंग की हैं, टेबल्स दी हैं, आप कैलकुलेशन को तो चैलेंज नहीं करेंगे या करेंगे? मैं कोई टेक्स्ट नहीं लिख रहा उसमें, एक्सेल शीट को यूज कर रहा हूँ कैलकुलेशन के लिए, ताकि साफ साफ आए। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जब तक आपको लंबी लंबी कैलकुलेशन लिख के ना दी जाए, समझ नहीं आता स्टेटमेंट में। लेकिन यहाँ स्टेटमेंट नहीं है, यहाँ सेल्स की नॉलेज है, सेल्स के फार्मूले हैं, और यही दिक्कत आती है कि एकदम समझ लोगों को नहीं आता। समझ आए ना आए सवाल वो नहीं है, रिजल्ट पे गौर कीजिए। आपको ध्यान देना चाहिए रिजल्ट क्या आ रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, इन तीनों स्टेट्स के असेंबली में और दोनों स्टेट्स में, छोटी स्टेट्स में, टोटल जो रिजल्ट अब मेरे सामने आए, इलेक्शन कमीशन की डिटेल्स के हिसाब से, मेरी डिटेल्स के हिसाब से नहीं, कलेक्टेड डिटेल्स के हिसाब से नहीं, 56 करोड़ 56 करोड़ वोट इन पांचों स्टेट्स में पड़ने चाहिए थे, अगर ये लीड सही है, ये परसेंटेज सही है। 56 करोड़, हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा आज की तारीख में 100 करोड़ वोट होंगे, और 56 करोड़ इतने से एरिया में आ गए जहां एक्चुअल वोटर्स मेरे हिसाब से 10-11 करोड़ से ज्यादा नहीं होंगे। और 56 करोड़ मतलब 5 गुना स्केल को यूज किया गया। और शायद ये ये स्केल इलेक्शन कमीशन को भी मालूम नहीं, उसके डाटा साइंटिस्ट को भी मालूम नहीं, बस लीड लिख दी ये सोचकर कि कौन चेक करता है, कौन स्टडी करता है, जो कुछ है हम हैं, देख लेंगे किसी को भी, क्या करेगा हमारा, हम बात ही नहीं करेंगे किसी से। और सच बात है, वो बात भी नहीं करना चाहते, ये भी सच है, क्योंकि मैंने कंप्लेंट दर्ज कराई थी ईसी की, मैंने मेल भेजी थी, वो फाइल लगाई थी, जो मैंने वर्कआउट की, जो मैसेज मैंने उसमें लिखा, फाइल तीनों लगाई थी, लेकिन वो उस टाइम लगाई थी जब मैं स्टार्ट कर रहा था काम। उस टाइम मैंने 36 करोड़ वोट की फाइल उसको भेजी ईसी को, उसने समझ ना रहा, वो कुछ डिटेल्स मांगी, मैंने डिटेल भी उसको दी। उसके बाद उन्होंने मुझे आईडी दे दी, ये आपका कंप्लेंट आईडी नंबर है, ये कंप्लीट जब होगी आपको बताएंगे, हम आगे भेज रहे हैं। उनको मैंने फिर रिमाइंडर भी डाला, उन्होंने उसके बाद भी और डाटा भेजा, लेकिन अंत ये हुआ कि उन्होंने मुझे 2 दिन पहले आंसर दे दिया कि आपकी जो भी कंप्लेंट है वो रिजॉल्व हो चुकी है, तो उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उन्होंने पढ़ी ही नहीं कि मैंने क्या भेजा है। सच तो यह पढ़ी होती तो सोचते कि यह क्या डाटा है, फाइल शायद उन्होंने खोली भी नहीं, क्योंकि हम जो हैं बस वही है, हम इलेक्शन कमीशन हैं, आप हमसे ज़्यादा बात नहीं कर सकते, हम आपसे बात ही नहीं करना चाहते। एहसान मानिए कि हमने आपकी कंप्लेंट की आईडी दे दी और हमने उसका रिजोल्यूशन दे दिया, और क्या चाहिए आपको। ये है हमारा देश का चुनाव आयोग आज का, 2023 का, 2024 का। उसे किसी कंप्लेंट से कोई मतलब नहीं है, शायद वो देश का नवाब है, देश का राजा है, ऐसा लगता है। उसे वोटर की प्रॉब्लम से, पब्लिक की प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। एहसान करता है वो वोट डलवा के, और उससे बड़ा एहसान करता है वोट गिनवा के, और उससे भी बड़ा एहसान करता है क्या क्या कि मैंने डेमोक्रेटिक काम किया और मैंने सब कुछ किया। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, इलेक्शन कमीशन आपको जवाब देना होगा। मैंने कंप्लेंट सुप्रीम कोर्ट में भी भेजी है, 2 बार भेजी है, मैंने कंप्लेंट प्रेसिडेंट साहब को भी भेजी है, लेकिन वहां से तो कोई आंसर आएगा नहीं, और इसी का आंसर आ ही गया है। अब बताइए मैं क्या करूं।
मैं कह रहा हूं सब गलत हुआ है, जब मैं सुप्रीम कोर्ट को लिख सकता हूं सब गलत हुआ है, प्रोफेशनल काम नहीं हुआ है, तो फिर मुझे किस चीज का डर है? लेकिन वो नहीं मानेंगे। ये जो मैंने फाइल आपको दी है एक्सेल की, ईवीएम वाली, इससे बहुत कुछ हो सकता है। ये एक रेडीमेड, आप कह सकते हैं स्केल कह सकते हैं इसको, आप इसको एक तरह से एप्लीकेशन कह सकते हैं। इसमें क्या है कि मान लीजिए आप काउंटिंग पे बैठे हैं, आपकी सीट पे आपको सही समझ नहीं आ रहा कि इतने बीजेपी को कम वोट क्यों मिले या कांग्रेस से ज्यादा क्यों मिले, आपको एडजस्टमेंट करनी है। ईवीएम में तो एडजस्टमेंट वहां नहीं कर पाएंगे आप, मैं मानता हूँ। काउंटिंग के टाइम हो सकता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर ज्यादा जानता है, मैं नहीं जानता, लेकिन जो ट्रांसफर कर रहे हैं आप उस काउंटिंग को, कहीं तो माइग्रेशन दे रहे हैं उसको, कहीं तो टेक ऑफ कर रहे हैं, कहीं तो कैरी ओवर कर रहे हैं किसी एक्सेल फाइल में या जो भी आपका सॉफ्टवेयर है, वहां आप कैलकुलेट कर सकते हैं हमको कितने वोट एडजस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जितने वोट पोल में हैं वो परसेंटेज बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने जीरो से जीरो मीन्स 5 से लेकर 100% तक उसमें लिया है। मान लीजिए 60% की पोलिंग हुई, तो वो 60% के हिसाब से कितने वोट्स एडजस्ट होने चाहिए। हमने इसमें 25 का लिया है, लेकिन 15 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। आपको जितने वोट एडजस्ट करने चाहिए, जो डिक्लेयर करने हैं, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ा सा उसमें आपको लिंक करना पड़ेगा, उसी फाइल पर आंसर आ जाएगा। क्योंकि मैं नहीं कर सकता, मैंने 25 मान लिया जी, 25 वोट की हमने एक बूथ में 25 वोट की हमने हेराफेरी करनी है इस चुनाव, इस सीट पे। 25 अगर हम डाल दें एक पोलिंग मशीन में, तो कितने वोट उस सीट पे गए किस पार्टी को। इस तरह से किसी के काटने हैं तो कितने काट दें जो कि दूसरी पार्टी को दे दें, जिसको आप कह सकते हैं स्वैप ऑफ वोट्स। जो लोग कहते हैं स्वैप कर दिया, वो स्वैप डाटा को करते हैं, वोट को नहीं, जहां तक मैं समझ रहा हूं। स्वैप डाटा मैं नहीं जानता, मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन मैं डाटा के एंगल से कह रहा हूं। अगर मान लीजिए मशीन हैक नहीं भी हुई, नहीं हुई मान लेते हैं, बिल्कुल सच्ची मशीन है, जैसे वो कहते हैं कैलकुलेटर है, मान लेते हैं, मैं एज्यूम कर रहा हूं आपने कोई गड़बड़ नहीं की ना कराई, लेकिन डाटा की क्या गारंटी? मशीन तो डाटा ऑटोमेटिक जाएगा नहीं, उसमें से आपको टेक डाउन करना पड़ेगा। वहां कुछ भी हो सकता है, हजारों हजारों डाटा एंट्रीज करनी है आपको, कुछ भी हो सकता है। तो ये चार्ट जो मैंने दिया है, ये प्रोफाइल जो मैंने दी है टेबल की, इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। वो देख लेंगे कि हमको कितने वोट देने हैं उस पार्टी को, क्योंकि उनकी परसेंटेज वोट फिक्स हो गई है। उस मशीन में इतने परसेंट वोट आए, उस मशीन में आए या उस सीट पे मान लीजिए आए, उस सीट पे 60% वोट आए, तो आप 70% की काउंटिंग दे नहीं सकते, क्योंकि मशीन में पकड़े जाएंगे। 60% वोट उसमें ऑलरेडी दर्ज है हमारे टेबल में, उसको आप लिंक कर सकते हैं नीचे वाले में, जहां हम कैलकुलेशन दे रहे हैं। तो वो ये पता लग जाएगा ट्रायल से कि 25 वोट का फर्क है या 30 वोट का फर्क है या 50 वोट का फर्क है, उसके हिसाब से कितने वोट एडजस्ट हो सकते हैं, वो आप पूरे रिजल्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। ये थोड़ा समझने की बात चले कह रहा हूँ। ये ही गेम है इसका, ये खेल है इसका, ये आप कह सकते हैं ताश के पत्ते हैं, जुआ है इसका। हम ये नहीं कह रहे कि हम ख्याली पुलाव कर रहे हैं। ये मैंने डाटा अपनी नॉलेज से बनाया है, मैंने किसी से पूछा नहीं है, और मुझे आवश्यकता है पूछने की। अपनी नॉलेज से बनाया है और ये डाटा वर्क करेगा। एक डाटा साइंटिस्ट बड़े आराम से, या साइंटिस्ट ना भी हो, किसी को समझा दिया जाए, वो बड़े आराम से इसको मैनिपुलेट कर सकता है। और वही हुआ है या नहीं हुआ है, मुझे इसमें भी डाउट है। अगर हुआ होता तो लीड्स ऐसी नहीं आती। लीड तो आंख बंद करके दी गई है, आंख बंद करके, दिमाग भी बंद, आंख भी बंद। ऐसा होता क्या है? अच्छा, इसमें कितनी लीड आ रही है? इसमें जी बीजेपी वाला 5,000 वोट से हार रहा है, 5,000 वोट से हार रहा है, ठीक है, उसके वोट 50,000 डाल दो, बात खत्म। 50,000 वोट डाल दिए। कांग्रेस वाला कितने से जीत रहा है? 15,000 से, उसके 30,000 वोट कम कर दो। ये बीजेपी वाला कितने से जीत रहा है जी? 2,000 से, इसके 12,000 कर दो, 6 गुना हो गया। ये बीजेपी वाला कितने से जीत रहा है? 3,000 से, इसके 30,000 कर दो। ये खेल हुआ है, मंडी बना के रख दी है
चुनाव के काउंटिंग को एक मंडी में तब्दील कर दिया गया है। ये मेरा सर्वे है, इन्वेस्टिगेशन है, कुछ भी कह लीजिए, ऑडिट है। I just like to say something about this election because I was speaking in Hindi and I want to speak about those people who are in South or elsewhere around the world who do not understand this for them. This election has been a big game, big play for by EVM, and it's very, very easy to chart out that. I tried to work out on this, and you can say I produced one small application for how to adjust votes during counting or otherwise. During counting or otherwise, in both cases it can be used, but I'm more interested in during counting time because at that time, you know what percentage of vote has been polled. Every machine is there and record is there, and accordingly you can adjust that vote. And I just gave an example by putting trial numbers 25. It can be 15, it can be, it depends upon how many votes you need, and you can just try the chart out, and you can say for every seat it happens, for every polling booth it can happen, and you can sum up all those. It's very easy. If somebody can maybe explain this, one can use it. This is very simple, nothing at all, and it's varies from figure of 50,000, you can say seat vote, to 20 lakh seat vote. In this range, I have used 40 columns having a frequency difference of 50,000 votes. You can say 50,000, 100,000, then 200,000, 200, likewise up to 400, 20 lakhs. That is range I've taken, and also vertically in column I've taken in rows, and that is, you can say, vote difference as a frequency of 5%. Is 5%, 10, 15, 20, like this up to 100. So there are 800 cells used for this, 40 columns and 200 rows have been used, Charlie. And that is only for the purpose because it's going to be more, but I don't take that risk. And I'm just trying to share this with public, means what could be done or what can be done. If you want to manipulate, because people say how it is possible, it's not possible, but it is possible. Virtually it is possible, scientifically, mathematically it is possible. That this seat is there, how many votes we have to give to BJP, how it's possible, what percentage apply, and you can find that. It's not difficult. And this happens only when you transfer details, printout or whatever details you have from EVM. You can transfer it to Excel sheet or whatever software election commission uses. And it is very easy, not difficult. It's because I was very much busy for 1 month. I've been very busy just chatting out about audit, conduct audit on these election results. I never did this in my life, and I never contemplate that it would learn, but just by chance, I don't know how it happened. I don't know why. Even it came to my mind because I was not convinced by figures of seats declaration, either in favor of BJP or in favor of INC. Otherwise, I said these person when I just had look on graphics of EC from their website, 5 graphics. I just checked, and I was really, I could not convince myself. I could not convince. How it's possible? It's not possible. It just, you can say, difference of 2 point, 2.16% can give it lead difference, or you see difference so much. 69 to 115 in Rajasthan, 69 to 115. Same way, a difference of 8% in Madhya Pradesh can be difference of 66 to, you can say, 161, 97 is impossible. 97 seed difference, 42 seed differences. Likewise, it is not possible in this margin. Not at all. Yes, in Mizoram, it is possible. In Telangana, it is possible because in Telangana, there is 86.6% difference between two parties. That's possible. Same, more than 75% difference exists in Mizoram, though it's only 40 seats, but vote is vote. How can it happen that a percent difference in votes in two parties with BJP and IC, just 8%, 8.15%, can give you so much difference, 97 seats difference? Impossible. 15 seats, 19 seats difference. Then in Chhattisgarh with 4% vote, impossible. And difference in seats in Rajasthan, great example, 69 to 115 means 30, and 50, 45 more than that. How it's possible? Do you get my point?
I'm not joking. I'm not kidding. It's calculation. It's for world, for you, for me, for everybody. You check it. Files are available. I've given links to all files. Files are available in script.com. Today's file is also available in script.com. It's you can see my URL in text of this video. Script.com URL is given. You download this file, Excel format file, and check what I've done. And I like if you have some comments, write to me on my email that is suraj underscore engineer at yahoo.co.uk. Please don't call on phone. I cannot discuss on phone. It's not convenient. It's difficult to explain. But when you open file, you study it, you can write to me. I will respond to you. And I have sent this file to our senior advocate, Mr. Narendra Kumar Mishra, who is handling this case of EVMs in Supreme Court, and I hope he shall do something good for nation, and he's getting supports from all sectors, and he's sincerely working on this. I appreciate him, admire. It's up to him now how he moves. I've given all details to him, and I also given this file, and this file is you can say shall open eyes of everybody. If they want to see this file, that something can be done for manipulation of votes, because neither candidates nor all agents can be present when data is transferred. How is it? I am not talking about during poll, because that is also possible. Again, I say please consult IT software engineer, because I do not know any mechanism of this machine. I am civil engineer. If I say something that is just in air, or you can say just like people say throw something for nothing, I do not throw anything without logic, without reason, without you can say basis, technological basis, calculation basis. I don't want to submit anything. I don't want to claim something. After all, I should give something that can be used, and that's professional work. If your submission is not useful, this means this is just imaginary, like a poem, short story, and it's not that. Data has been completely audited through analysis, through synthesis, through trial, through permutation combination. Every part of maths which could be used on this data has been used. I return to Honorable Supreme Court. Let us hope Honorable Supreme Court shall weave into this. I have no capacity to move a case. I don't have that much funds. It's not possible for me, but it's for publics, not for me. People should know what's happening. It's right of people. It's not right of election commission that he says, I do not talk to you. I don't care for your complaint. No, Mr. Election Commissioner. You may be whatever in this country, but you are public servant and you are doing your job for people, for voter. It's your duty. You have to satisfy voter. And if you cannot satisfy voter, then people are not happy with you. They can't approve you. You may be approved by government, you may be approved whosoever, but ultimately approval should come to people should say, oh, election commissioner, you are great. They should say, election commissioner, you are great. You are great professional. You have done excellent job. That's what people should say. No, it's not happening. And I am sure if I get data for last 5 years, because more than 5 years there is no use, I can, I need data for 2019 Lok Sabha elections. I need data for all those states, particularly where BJP came to power, or even AAP came to power. AAP came to power in Delhi, AAP came to power in Punjab. I want that data also, because I still doubt that. I just want to audit that. And if Congress has done something wrong, I can analyze, I can audit that also based on my knowledge. So, well, I know data may not be available now, particularly no percentage votes are there. I know that how many votes were polled, how many percentages were shared by each party, and means how many seats were declared for each party, that can be known, and seats indications can be at least known from that. But if leads of each seat are not available, then we cannot know, means we can only know partly whether this number of seats were to some extent justified or not justified. As I said, that 2% data difference, 2% difference, and 4% difference in votes, and 8% difference cannot give
You can see this gap of seats number not possible, but proof is there that in Telangana it's big difference in votes, 86.6% votes, and there Congress should have gotten 89 seats, but they got 60 something. 25 seats stolen from Congress and 5 seats stolen from ZPM in Mizoram. 78 seats stolen from Congress in Madhya Pradesh, and I think 15 seats stolen from Congress in Chhattisgarh, and 42 seats stolen from Congress in Rajasthan. That is my, you can say, my submission to people, my claim, you can say it's kind of claim calculation based claims. Yes, you see, this is claim calculation based. It can be, there can be variation of 1 or 2%, maximum 5%, not more than. So I see 78 seats have been given to BJP additionally. So you can say maybe 70 sometimes, or maybe 80 also. Likewise, I say in 42 seats in Rajasthan, it can be 38, it can be 45, not more than that. Be clear. That's my really, I'm surprised this time. I don't know how I am, first of all, I'm involved, and I think it's God's instruction, maybe through Saul, that you do it. And I'm not talking in blank, I'm not talking in air, just like Paul. Oh, I do this and I do. No, no, no. I'm not a lawyer. I'm not talking in air. I'm not saying EVM is right or wrong. I'm not saying. I am giving you data. Check this data. That is my point. I'm not saying anything illogically. My data, you check it. If there is question, I can answer. It is very simple calculation. Very, there is no trigonometry, there's no algebra, there's no square root, under root, there is no coordinate geometry, there is nothing at all. No sine theta, cos theta, no differential equation, no calculus, nothing. Just simple arithmetic, which generally called mensuration. And sometimes we say, go to market, buy these items, take this money, bring back balance money, and then ask what you have done. That's it, nothing else. So, my dear friends, I would say, don't think that I'm wasting your time. Something is happening in this country which should not have happened. I can say now to 100% accuracy. Means how it's happening, since when it's happening, I can't say. But this time it's clear, and I'm sure that what happened in 2019 victory of BJP, that is also designed one. Whatever elections were won by BJP in these 5 years, those all are designed one, all designed. It seems correct now. Yes, I can't say about 2014, no, because that time it was different scenario. People wanted to remove Congress, but in 2019, no, people didn't want to remove Congress, and now not at all. But Congress is being removed. I'm not supporting Congress. Again, I say, I am not politician, not at all. I don't belong to any party, and not at all I have any you can say plan to do so. But for country, I have to talk. For people, I have to talk, because my political party is we people, not Congress, not BJP, or not XYZ. I belong to a party which is called We People. That's it. हम लोग, मेरी पार्टी है वो, और इसके अलावा कुछ नहीं। अब मैं इस बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैंने गलत नहीं कहा, और आप इस चीज़ को देखिए। थैंक यू वेरी मच। जय भारत। शायद कुछ सुधार होंगे, ऐसा लगे, होने चाहिए। आप भी फोर्स कीजिए। अब मैं बंद करता हूँ इस वीडियो को।